ସାର୍ ଜୟଜୀ ଜୟଜୀ। ସାର୍ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତଦାଦର୍ଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନ। ମାନେ ସାଧକ ଯଦି ଯୋଗର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହୁଏ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସାର୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପରେ ନ ରୁହେ ସ୍ଥିତିରେ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବେ। 4th ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସପ୍ରେମୀ ଜୟଜୀ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ତଦାଦଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପରେ ଯୋଗ କରି ଯେତେ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଅଶ୍ଳୀ ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆସିଯିବ। ତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତରେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ 4th ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଇତରତ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ 4th ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚ୍ୟୁତ ହେବ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱରୂପରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱରୂପରୁ ଯେଭଳି ଚ୍ୟୁତ ହେବ, ମାନେ ସାଧକ ସ୍ୱରୂପରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଆସିବ, ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯେମିତି ବୃତ୍ତି ହେଇଥିବ ସେଟା ସେଇ ରୂପରେ ରହିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହି ରଖିବା ଉଚିତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ, ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କହିଥିଲୁ, ଏଠି ଚିତ୍ତ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଥିଲା। ଚିତ୍ତର ଚେତନତା, ଚିତ୍ତର ଯେଉଁ ଚେତନତା, ସେଇ ଚେତନତା ହେଉଛି ଚେତନତାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି। ଚେତନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାର ଚେତନତା ଅଛି, ଚେତନର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକୁ, ଚେତନର ଯେଉଁ ଚାଲିବା ବା କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସେ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ, ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମନ। ତ ଆମର ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଚିତ୍ତ ଏଇ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାହେଉଛି, ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାହେଉଛି, ସେଇ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଟା, ସେଇ ବୃତ୍ତିଟା ହେଉଛି ମନ। ସେଇଟା ସଂସାରରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ନ ରହିବ, ସ୍ୱରୂପରୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେମିତି ତାର ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ତାର ମନ ହେବ, ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରସ୍ଥ ମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେ ସେଇ ରୂପରେ ରହିଯିବ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେଇ ରୂପରେ ରହିଯିବ। ଆମର ମନ ସେଇ ରୂପ ଧରି ନେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ସେ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେଇ କର୍ମ ରୂପରେ ହେଇଯିବ ତାର ମନ। କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯେମିତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ସେ ହୋଇପାରିବ। ସାଧୁ ହେବ, ଯେ ସେ ଯାହା ହେବ, ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ଡକ୍ଟର ବି ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମନୋବଳ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ସେଇଠି ମନୋବଳ ହିଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଯୋଗ ବଳ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ ସେ ଯୋଗ ବଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯୋଗ ବଳରୁ ସେ ମନୋବଳ ପାଇଯିବ, ମନୋବଳ ପାଇବ। ସେ ମନୋବଳ ସଂସାରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନର ମାନସିକ ବଳଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମାନସିକ ବଳକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସାରା ସଂସାରରେ ଯଦି କେହି କର୍ମ କରେ, ସେ ଏକମାତ୍ର ମନ ହିଁ କର୍ମ କରୁଛି। ତ ସାରା ସଂସାରସ୍ଥ ମନ ସଂସାରରେ କାମ କରୁ କରୁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ମନର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ବହୁତ ସମୟ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ସେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସେ। ବିଚାର ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ବି ମଧ୍ୟ ହରେଇ ବସେ। ଏଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲି ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ମନ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପୁରା ଅଜ୍ଞ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଆଉ ନଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗସ୍ଥ ହେଲେ ତ ସଂସାରରେ, ମୁଁ ଗତ ଥର ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେ ସଂସାରରେ
संसार रे भोग भितर हूँ जोग तो मन संसार को भोग कर तो भोग कर शक्ति भी मतलब सामर्थ्य रहा दरकार भोग करने शक्ति बा सामर्थ्य दरकार पड़ो मन बल दरकार पड़ो संसार में जिते सब बड़ बड़ कार्य होती सी सब मन बल जो ही हो जड़े मनर अपार शक्ति अच्छी से प्राप्त होती तार स्वरूप प्राप्त होती तो मनर अपार बल अच्छी तो यही अपार बल नहीं कि से जो कर्म कर से कर्म बा से जिमित होगा चाहिए से सीमित हो पार सेटा हूँ जोग चित्त भितर माने से गोटे मनर जोगरे जोगर चित्तटा को वृत्ति करदे वृत्ति जिते निरोध करदेव से निरोध अवस्था को पड़ जाओ कि पुणी जो संसार मुखी होते बंधन आ मुखर कारण हो मन ना तो से बंधन मुख संसार को जिते मन पुणी पलि आस वृत्ति सारूप अवस्था को चली आसो तो संसार से जहाँ हवा चाहिए सेमती से ये गोटे उदाहरण मुझे दूसरी जदि 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 जड़े भल वैज्ञानिक हवा चाहिए तो वैज्ञानिक स्तर में से तार शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर जड़े इंजीनियर हवा चाहिए इंजीनियरिंग स्तर तार शिक्षा दीक्षा कर तार अर्थात मन बलशाली हो से जहाँ चाहिए सी पार जड़े रोगी जड़े रोगस्थ व्यक्ति रोगी जड़े सी सुस्थ हवा चाहिए निरोग हवा चाहिए तार मनर बलटा एत बढ़ी से निरोग चिंता करने मात्र से निरोग हवा आरंभ कर शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग परिवर्तन हवा आरंभ कर अर्थात तांकर शारीरिक स्थिति मानसिक स्थिति ये एक संपूर्ण बलशाली हो जाइए कहुच्छी से समय से जहाँ चिंता कर जड़े रोगी यदि चिंता कर निरोग हाँपाई से निरोगर चिंता कर से निरोग हम तार मन एत बलशाली हो कथा बुझीपारे तो से मन खाली रोगी है से जदि आपणकर जमी जरा व्याधिग्रस्त व्यक्ति जड़े से निजे जरा व्यक्तिगत निजे उद्धार पाइबापी चेष्टा कर उद्धार हो जिते जहाँ चाहिए से सिया ही से हो तो संसार को जड़े समस्ते सुख शांति आनंद पाइबापी चाहे संसार में सब बड़ जिनस हूँ जे संसारी मनुष्य सबू क्षेत्र में सुख शांति स्वास्थ्य आनंद हाँपाई चिंता करे तो से जो संसार मुखी कि संसार को आसीज से जो सुख शांति स्वास्थ्य आउ आनंद एगुड़ाक से पाइबापी हकदार हो माने ये स्थितिर से साधन से चाहिए ना जड़े साधक कौन चाहिए तार निजर भलपाई चाहिए तो सुख शांति आनंद पाई चाहिए सेमती सुख पाई सुख चाहिए जे से सुखकर कर्म कर शांति चाहिए जाए जे से शांति युक्त कर्म कर संसार से विशृंखलतार काम करना अशांतर काम करना सुख जे चाहिए से सुखर काम कर सुखर भावना कर सुखर चिंतन कर से दुखर भावना दुख चिंतन करना आनंद चीज चाहिए संसार थी कि से आनंद युक्त कर्म कर द्वारा संसार में कौन से अनिष्टकर कार्य हम ना किंतु बड़ कथाटा हूँ जड़े से जो स्थिति को गले स्वरूप स्थिति को गले से केबे खराब हाँपाई चाहिए ना से निजे भल हाँपाई चाहिए आउ समस्त भल पाई भी से चेष्टा करे महापुरुष माने जो मैंने महापुरुष प्रकृत में से माने निजर मंगल से निजे जिते जानी जाए से संसार को आसिले संसार से समस्त दुखी रुखी जनों से मंगल कामना मंगल कामना करे मंगल युक्त कर्म करे मंगलर उपदेश दिए इत्यादि इत्यादि सब जनहितकर कार्य गुड़ाक से करे ये स्थिति को संसार स्थिति को आसिले तो संसार जो भल मनीष हाँपाई जोगी हाँको पड़े तो ये वृत्ति सारूप जो 4 नंबर सूत्र ये से जो कथाटा आसूची जड़े जोग जोगी जड़े जोग करुवा व्यक्ति जोगी से संसार को संसार काम करिपारिबो तो मोर कहवा कथाटा हूँ पतंजलि ऋषिंकर जे संसार काम से खूब भल भाव करिपारिबो आ संसार खूब भल मनीषर कार्यटी से करिपारिबो
मृत्यु स्वरूप स्थिति जे जोगस्थ हो से संसार ठीक भाव में भोग करिवो आ संसार रे से निजको जमी सुख शांति आनंद रे निज पई चाहूची से समस्त सुख शांति आनंद चाहिए ये हूँ जोग गाड़ी ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବନି ଆଉ ना निजर तो क्षति कर अन्न मानक भी से क्षति करना ये भल मनीषर परिचय दब भल व्यक्तित्वर परिचय दब ता भर सुसंस्कार आरंभ हो जाइए ना से सुसंस्कार साधन करुच्ची आउ सबुठारु आउ एक कथा अच्छे तो कहले बहुत समय चलीज तथापि मुझे कहीदूँ ये जो संस्कार युक्त कर्म ये जन्म जन्मांत धरिकी आमे जो जो संस्कार नहीं कि संसार जन्म नहीं से संस्कार रे आमे ये संसार रे ये कर्म फल गुड़ाक भोग करुचु किए दुख पाऊ किए कष्ट पाऊ किए सुख पाऊ बा जहाँ भी किसी पाऊ से तार पूर्व जन्मर फलटी को से भोग करुच्ची संसार थी किंतु ये संसार रे रहीकि जिते सुसंस्कार युक्त कम टे करवा आरंभ कर ये संस्कारटा पुणी पुनर्जन्म को चली जाइए ये जन्म तो ता निजर भल कर अन्न मानकर भल कर पूर्व ता पर जन्मटा भी मध्य भारी संस्कार युक्त कर्म सुसंस्कार से जन्म तो जोग एक से मुनि ऋषि मानकर जो सिद्धांत जो मनुष्य किमिति सुख शांति आनंद पाई से ही खोजी खोजी बाहर कर जोग गोटे एमती एक कर्म जहाद्वारा मनुष्य निजको सबुठारु भल मनीष से तैयारी करि परिबो निजको भल पाइबो अन्न मानको भल पाइबो आ से ही जाने संसार सबुठारु चेतन प्राणी से सबुठारु उच्च विचार संपन्न व्यक्ति हो एतके को आउ कोन जानिबार अछि ठीक है सर आगामी अध्याय रे आउटे पंचम नंबर सूत्र अछि हाँ आग सूत्र रे आमे आलोचना करिबा जो 5 नंबर सूत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा विषय रे 5 नंबर सूत्र विषय रे आमे हाँ से विषय खुली कहबा आमे वर्तमान जोग जोग कले कौन हम जोग कले कौन हम आउ जोग द्वारा लाभ कौन आउ जोग स्तर रु संसार स्तर को चली आसने तार लाभ कौन ये विषय में आलोचना करदे माने अर्थ जोगानुसार थिला धरिगला तापरे जोग स्थित वृत्ति हेले कौन हम स्वरूपस्थ हम स्वरूपस्थ हैला परे कौन जदि स्वरूपस्थ गोटे लोक न हुए ताले कौन हम आज चतुर्थ नंबर सूत्र सेटा तार आंसरटा बाहरी गला तोरा ये हमर वृत्ति सारे प्रिय इतरत्व संसार से जेमिति कर्म करबो सेमिति अर्थात ता द्वारा सब प्रकार भल कर्म ही हम धन्यवाद जय जी।